Hello, dear research scholars. Welcome back to the official YouTube channel of Monarch University. In continuation with the online lecture series of PhD coursework 2024, today we will have again unit number 3, applications of information and communication tools in post data analysis, part 1, with the topic of hands-on training to Mendeley software. So, in our previous lecture, what we have studied is to distinguish between references and bibliography, राइट कि रेफरेंस क्या होते हैं और बिब्लियोग्राफी क्या होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने सीखा, उनके अलग अलग टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। और एट द एंड जो मैन्युअली रेफरेंस ऐड करने की जो प्रोसेस है उसमें जो ट्रबल्स हम फेस करेंगे, जो हम हमारी मैन्युस्क्रिप्ट का ड्राफ्ट एक बार प्रिपेयर करेंगे उस टाइम पे, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक ऑटोमाइजेशन टूल जो कि मेंडेले सॉफ्टवेयर है उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी, और उसको हम हमारी सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट। सो आई होप कि ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, चाहे वो लैपटॉप हो या पीसी हो, उसमें मेंडेले सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका होगा। मैंने लास्ट जो वीडियो है उसमें उसको डाउनलोड करने की लिंक भी भेजी थी, एंड नॉट ओनली डाउनलोडिंग, आई ऑल्सो सजेस्टेड यू to also create one elsewhere ID using the sign up tool. The link was already given in the description box also. So I hope that all of you have successfully installed the Mendeley software into your electronic gadgets, as well as successfully created the login credentials for the same, right? So now we will switch over to the Mendeley software. So this is how the dashboard, or we can say the home page of Mendeley Reference Manager software looks like. And we have also gathered some basic informations about the number of informations provided once the reference has been added into the Mendeley software. Once again, if these are the list of references which I want to incorporate in the manuscript, let us recall that how we can import the large number of references into the same Mendeley software. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ एक ही रेफरेंस को अगर हमें ऐड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम जो हमारा सॉफ्टवेयर है मेंडेले सॉफ्टवेयर, उसमें हम मल्टीपल रेफरेंसेस को ऐड करने के बारे में सीखेंगे। तो हम कहां पे जाएंगे, गूगल स्कॉलर में, राइट। सो इन द गूगल स्कॉलर आई विल randomly write, let's use the Mendeley software itself. Okay, so these are some articles on Mendeley software. So by site, clicking on the site menu, from refman we can have the .ris file in the download section. So this is the one reference which has been successfully downloaded. Now let's randomly pick up another one. So this is the another reference file I have downloaded. Moving to some further pages, clicking on the site menu, I have downloaded 3 references. So you can see Scholar, Scholar 1 and Scholar 2 are the 3 .ris file I have successfully downloaded. So now what I will do, I will go to the Mendeley software, right? Now I know the location of the file. It is very much necessary that you should know where the file has been located. So if you are using the Chrome or Mozilla Firefox or Microsoft Edge browsers, then the downloads folder of your Windows system itself will be the preferred location, right? So from here, the file menu, we have add new option. So import library. Under the import library menu, we have the option of RIS. The full form of RIS is Research Information Source. Okay, so this is the full form of RIS. So these are the 3 .ris file which I am selecting from the downloads menu of my system itself. Okay, and then I will click on open. So 3 files which you have selected has been displayed under this category. So I will click on open. So the uploading is in progress and 3 files uploaded, 3 references generated. So
Here you can see these are the three references. So I am sorting through the timeline. So I have the three reference or the three resources I have successfully added into my resource. So this is the database. जितनी भी RIS फाइल्स आप डाउनलोड करोगे उसको आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? यू शुड नोट डाउन स्टेप वन. द स्टेप वन इज you have to download the .ris file. You should keep it the stepwise procedure so that whenever you prefer or you go for the hands-on training or the actual process to incorporate the references or bibliography into your manuscript, this stepwise procedure will be definitely beneficiary to all of you, right? So step one is to download the refman or .ris file from Google Scholar portal. ओके तो जितने भी रेफरेंसेस आपके मैन्युस्क्रिप्ट या आपका जो टारगेटेड रिसर्च है उसमें आपने जो भी रिसोर्सेज को ऐड किया है उसको हम गूगल स्कॉलर के साइट मेनू में से उसकी रेफरेंस फाइल को हम डाउनलोड करेंगे. ये आपका फर्स्ट टास्क रहेगा. तो सबसे पहले यही प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है. जितने भी रेफरेंस आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के लिए यूटिलाइज किए हैं ना सभी को आप एक साथ डाउनलोड कर दीजिए और जैसे ही वो एक साथ डाउनलोड हो जाते हैं मैं यहाँ पे ऐड न्यू को मेंडेले सॉफ्टवेयर एक बार ओपन करके ऐड न्यू मेनू पे क्लिक करके इंपोर्ट लाइब्रेरी में जाके मैं सभी RIS फाइल को एक साथ यहाँ से मैं सिलेक्ट करके इसमें मैं ऐड कर दूंगा. सो इससे क्या होगा कि मेरे सभी रेफरेंसेस मेंडेले सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं एक्सेस कर पाऊंगा और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है जैसे कि ऑथर्स नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, द टाइटल ऑफ द रिसर्च आर्टिकल और एनी बुक और एनी थीसिस विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर. उसका जो सोर्स है या तो कोई पब्लिशर है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे से मिल जाएगी एंड द टाइम वेर when I have added this particular reference will also be displayed over here. So अगर ये तो चलिए एक मैन्युस्क्रिप्ट की बात हुई. आपको एटलीस्ट 2 पब्लिकेशंस तो प्रिफरेबल है. उससे पहले आप अपना सिनॉप्सिस या थीसिस यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं कर पाओगे. 2 UGC केयर और स्कोपस इंडेक्स और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल्स, राइट, उसमें आपका पेपर पब्लिश होना चाहिए. अभी एक आर्टिकल के लिए हमने मान लीजिए सारे रेफरेंसेस को यहाँ पे डाउनलोड किया. तो जैसे मैंने आपको एक फोल्डर्स की बात बताई थी, राइट, यू कैन क्रिएट वो फोल्डर और उन्होंने अभी उसको जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ उसमें उसको रीनेम कर दिया है कलेक्शंस. तो अभी मैं यहाँ पे कलेक्शंस को एक नया क्रिएट कलेक्शंस पे मैंने क्लिक किया. हियर देयर इज अ ऑप्शन ऑफ क्रिएट कलेक्शन. सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट you have to type the folder name or the identification type, right? So here I am writing coursework training session, right? So I have click on tick. So this is the reference for coursework training session. So जितने भी references अभी मैंने ऐड किए उनको मैं अभी क्या करूंगा, ये 3 रेफरेंस को मुझे यहाँ पे ड्रैग करना है. सी सिंपल है, मैं उसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो कोर्सवर्क ट्रेनिंग सेशन वाला जो मेरा है फोल्डर या कलेक्शन उसमें ये तीनों रेफरेंस प्लेस हो गए. ओके, अगेन मैं ऑल रेफरेंसेस में जाऊंगा, वहां पे तो वो डिस्प्ले होंगे ही लेकिन यहाँ पे और भी जो इररिलेवेंट रेफरेंसेस है या तो फिर जो कोई और ऑथर के है या तो आपका कोई दूसरा कोई वर्क है, प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके कुछ रेफरेंसेस है. सो जितने भी मल्टीपल फोल्डर्स आप डेवलप करोगे दिस विल बी बेनिफिशियरी टू all of you and the way you are downloading it will be definitely beneficiary while sorting out or incorporate particular reference in the manuscript. So अभी हम हमारा स्टेप 2 के बारे में हम सर्च करेंगे. एक बार हमने रेफरेंस को यहाँ पे ऐड कर दिया उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो कलेक्शन है या तो जो फोल्डर हमने डिजाइन किया है उसी को अभी इसमें ओपन रखेंगे. उसके बाद हम जाएंगे हमारी मैन्युस्क्रिप्ट में. जो लास्ट टाइम मैन्युस्क्रिप्ट मैंने आपको सैंपल के लिए दिखाई थी, अगेन सेम मैन्युस्क्रिप्ट मैं यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. ओके, सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था टाइटल में ऑथर्स एंड अफिलिएशंस, एब्स्ट्रैक्ट या कीवर्ड्स, यहाँ तक आपको मेंडेले सॉफ्टवेयर का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं आएगा. आपको जो नेक्स्ट यूटिलाइजेशन आएगा वो होगा आपका
इंट्रोडक्शन पार्ट में। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हम रेफरेंस है, मान लीजिए यहां पे रेफरेंस 1 है। अभी पहले मैं क्या करता था, यहां पे मैं मैन्युअली नंबर प्लेस करता था, लेकिन अभी हम रेफरेंसेस वाले मेनू में जाएंगे। साइट विथ मेंडेले, अभी जो आप पहले वर्ड यूज करते थे, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो रेफरेंसेस मेनू, या तो अभी तक जिन लोगों ने मेंडेले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है वो लोग अगर ये रेफरेंसेस वाला जो मेनू का टैब है उसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे मेंडेले साइट का ऑप्शन नहीं आया होगा। लेकिन आफ्टर सक्सेसफुली इंस्टॉलिंग द रेफरेंसेस मेनू वी हैव द मेंडेले साइट ऑप्शन। सो हियर द साइट विथ मेंडेले फैसिलिटी इज देयर। Okay, so after clicking on this site with Mendeley facility, we have to click on get started, right? So here it will ask for your email ID, and you have to enter your password. So now the page is being loaded. यहाँ पे आपको वो सारे रेफरेंसेस दिखेंगे जो आपने ऐड किए हैं, और वो भी किस लेटर में, मतलब कि जो हमने हमारे कलेक्शन में से अगर हमको चाहिए। सो दिस इज कलेक्शन। अभी देखिए यहाँ पे मुझे मेरा रेफरेंस 1 प्लेस करना है, ये मैंने मैन्युअली टाइप किया था, राइट? लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मान लीजिए कि ये मेरा पहला रेफरेंस है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन का रेफरेंस फॉर्मेट दे दूंगा। जैसे ही मैंने इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे मेरा रेफरेंस साइट हो चुका है। डन। सो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि फॉर्मेट बदल गई। हाँ, तो यहाँ पे आपको साइटेशन सेटिंग्स में जाना है। अभी वो स्टाइल जो यूज कर रहा है दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, दैट इज एपीए साइटेशन स्टाइल इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम दी मेंडेले सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। ये बाय डिफॉल्ट कुछ उन लोगों ने साइटेशन लैंग्वेज या साइटेशन स्टाइल जो है वो बाय डिफॉल्ट आपको फीड करके दी है, लेकिन आप उसमें चेंज कर सकते हो। जैसे कि एपीए में से अगर मैं कोई और साइटेशन स्टाइल में जाना चाहता हूं, जैसे कि यहां पे मैं लिखूंगा मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, सो एमएल स्टाइल आ जाएगी। सो यहाँ पे सिर्फ मुझे अपडेट साइटेशन स्टाइल कर देना है। सो सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गया। ऐसा ही नहीं, कोई जर्नल जिसमें आप अपना पेपर पब्लिश करना चाहते हो, उसका अगर टाइटल आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे किसी एक जर्नल का नाम लिखता हूं, जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर लिक्विड। सो इस पे मैं क्लिक करूंगा और अपडेट साइटेशन स्टाइल पे क्लिक करूंगा। सो सी यहाँ पे साइटेशन स्टाइल मेरी अपडेट हो गई। सो सी द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ हैविंग द नॉलेज ऑफ मेंडेले सॉफ्टवेयर इनटू योर रिसर्च वर्क, कि पर्टिकुलर एक साइटेशन स्टाइल को आप मल्टीपल जर्नल्स के फॉर्मेट में आप उसको फीड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आगे यहाँ पे आपको एक और रेफरेंस भी ऐड करना है, सो यू कैन हैव अनदर वन, ओके, एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन सेव चेंजेस। सो एक साथ दो रेफरेंस भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर मैंने इसको निकाल दिया, फिर मैं सेव चेंजेस करता हूं, तो देखिए वहां से नंबर भी रिमूव हो गया। सो दिस इज द वे यू कैन प्ले विद द नंबर ऑफ रेफरेंसेस इनकॉर्पोरेटेड इन योर मैन्युस्क्रिप्ट। दिस इज द एडवांटेज। नाउ सी, यहाँ पे दूसरा रेफरेंस हम प्लेस करते हैं। ओके, यहाँ पे ये मैंने दूसरा रेफरेंस प्लेस किया और यहाँ पे मैंने किया इंसर्ट साइटेशन। सो वहां पे ये मेरा साइटेशन ऐड हो गया। तो अभी मैं जो हाईलाइटेड कलर है उसको मैं निकाल देता हूं, नो कलर। ओके, सो मेरे दो रेफरेंसेस यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। अभी जैसे मैंने बोला था कि 1 और 2 के बीच में अगर मैं कोई रेफरेंस ऐड करता हूं, मान लीजिए कि ये लाइन में मुझे मेरे सुपरवाइजर ने बोला कि यू शुड ऐड द रेफरेंस इन दिस लाइन ऑल्सो, देन you have the option to select on this and insert one citation. Okay, so यहाँ पे आपका वो citation आ गया। अभी देखिए ये और ये citation कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा और ये थर्ड citation जो है उसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। सो सी,
इसका नंबर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। पहले आपको मैन्युअली करना पड़ता था। जैसे मेरा फर्स्ट रेफरेंस था, उसके बाद यहाँ पे तो कोई रेफरेंस था ही नहीं, इसका रेफरेंस नंबर 2 था, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लेस किया, उसका जो अपकमिंग रेफरेंसेस के जो नंबर है वो सारे चेंज हो जाएंगे। अभी मान लीजिए कि बिफोर 1 मुझे यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, हाँ, टू ऐड रेफरेंस, मुझे यहाँ पे भी रेफरेंस प्लेस करना है, हाँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट। सो अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस, हाँ। वी विल जस्ट ऐड अनदर काइंड ऑफ साइटेशन। मेरे पास अभी जो अलग रेफरेंसेस का जो एक कलेक्शन है, मैं उसमें से रैंडमली कोई यहाँ पे साइटेशन को मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं इंसर्ट 1 साइटेशन करूंगा, बाकी सारे रेफरेंस के नंबर ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स या कुछ एडिशनल चेंजेस करने की, उसको कमांड देने की कुछ जरूरत नहीं है। ऑल द प्रोग्रामिंग आर बाय डिफॉल्टली insert in the Mendeley software itself, right? So this is the benefit which I was talking about. इससे क्या होगा कि आपका जो रेफरेंसेस ऐड करने का जो मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, वो काफी इजी हो जाएगा, राइट। सो ऐसे ही अभी लास्ट में क्या आता है, बिब्लियोग्राफी। हम क्या करते थे, एक एक रेफरेंस को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते थे, लेकिन अभी मैं ये सारी बिब्लियोग्राफी को मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं 1 नंबर को भी डिलीट कर दूंगा। अगेन मैं जाऊंगा रेफरेंसेस में, राइट। आफ्टर गोइंग इनटू द references, here there is an option of, when you click on the 3 dots in the Mendeley site tab, you just have to click on insert bibliography. Okay, your bibliography will be inserted at your cursor location. So continue. So देखिए यहाँ पे आपकी बिब्लियोग्राफी आ गई। जो भी आपने रेफरेंसेस ऐड किए थे, वो सभी के यहाँ पे जो वॉल्यूम नंबर और वो सब है, आपको जस्ट क्या करना है, इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर देना है। जो आपने टाइम्स न्यू रोमन वाला रखा है, तो उसी फॉर्मेटिंग में आपको कर देना है, राइट। लाइन स्पेसिंग को भी आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेंडेले सॉफ्टवेयर। अगेन हम कुछ और रेफरेंसेस को भी यहाँ पे चेंजेस करके देखते हैं। मान लीजिए मैं रेफरेंस स्टाइल को यहाँ पे चेंज करता हूँ, साइटेशन सेटिंग्स में गया, चेंज साइटेशन स्टाइल, यहाँ पे मैं अभी वैंकूवर को सिलेक्ट करता हूँ। सो दिस इज द वैंकूवर स्टाइल। अब जैसे ही वैंकूवर पे क्लिक करोगे, कि जो कंटेंट में, मैन्युस्क्रिप्ट को कंटेंट में जो डिस्प्ले होगा वो इस तरीके से होगा, मतलब कि राउंड ब्रैकेट में आपका न्यूमेरिकल डिजिट लिखा जाएगा, और जो रेफरेंसेस आपके बिब्लियोग्राफी सेक्शन में ऐड होंगे वो इस तरह से होंगे। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन वैंकूवर, व्हेन आई फाइनली क्लिक ऑन अपडेट साइटेशन स्टाइल, सो इट विल चेंज ऑल द साइटेशन स्टाइल। सी, जो पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में थे वो राउंड ब्रैकेट्स में हो गए। नॉट ओनली दैट, आप बिब्लियोग्राफी में भी देखिए, बिब्लियोग्राफी भी पूरी चेंज हो गई। पहले मैंने फॉन्ट चेंज किए थे, ये अपडेट हुई। सो एज एन व्हेन ऐसे ही अलग अलग आप जो भी अपने रेफरेंसेस गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करना चाहते हो, तो वो आप यहां से साइट के ऑप्शन से जितनी चाहे उतनी रेफमेन फाइल आप डाउनलोड कर दो, लेकिन आपके पास एक सोर्स होना चाहिए कि आपको पहला रेफरेंस कौन सा रखना है, दूसरा कौन सा रखना है। ये एक एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। सो स्टेप 1, जैसे मैंने कहा था आपको, कि आपको मेंडेले सॉफ्टवेयर में सारी RIS फाइल डाउनलोड करके उसको इंपोर्ट करना है। नंबर 2, रेफरेंस में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके उसमें रेफरेंस में जाके आपको मेंडेले साइट को एक्टिव करना है। ये एक्टिव कब होगा, जब भी आप अपने मेंडेले के लॉगिन क्रेडेंशियल से अपना यहाँ पे लॉगिन करोगे, तभी ये मेनू आपको दिखेगा, अदरवाइज नहीं। इसमें अगर आपको कोई भी टेक्निकल एरर आ रही है, मतलब कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में, तो उसमें एक एरर कोड मेंशन होता होगा। वो एरर कोड को अगर आप गूगल में सर्च करोगे, सो वो डेफिनेटली आपको यूटिलाइज होगा, कि मतलब कैसे आप उस क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। काफी बार क्या होता है कि हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग को ऑब्स्टेकल्स के टाइप में उसको वर्क नहीं करने देते। सो इफ यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द एरर, एंड if you cannot solve from your end, then you can definitely approach the university. We will definitely look out to the issue or problem or the error code, and we will try to resolve it as soon as possible. So
After adding the references and enabling the Mendeley site option, the third step would be put your cursor at the position where you want to insert your reference. ये कर्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लिंक हो रहा है। ये कर्सर की पोजीशन जहां पे होगी वहीं पे आपका साइटेशन प्लेस होगा, राइट। तो जैसे मैं अगर ये ए और एन के बीच में कर्सर रखता हूं और रैंडमली कोई भी साइटेशन में यहाँ पे प्लेस करता हूं, सो देखिए उन दोनों के बीच में ही वो रेफरेंस प्लेस होगा। डन। सो मैं यहाँ पे क्लोज करके सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो वो वापस से अंडू हो जाएगा। दैट मीन्स कि कर्सर की पोजीशन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये कर्सर जहां पे ब्लिंक करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा था, तो वो मेरा रेफरेंस यहीं पे प्लेस हुआ। नेक्स्ट स्टेप जो हमने देखा था कि कर्सर प्लेस करने के बाद मैं यहां से मेरा जो साइटेशन है वो मैं सिलेक्ट करूंगा। तो जितने साइटेशन मैं सिलेक्ट करता हूं, अगर देखिए मुझे 5-6 मान लीजिए कि हमने लिटरेचर रिव्यू का कुछ समरी यहाँ पे लिखा है कि मेरे इस टॉपिक में इतना रिसर्च हो चुका है टिल द डेट, और जो भी 5 या 6 रेफरेंसेस आप प्लेस करना चाहते हो वो एक साथ आप रेफरेंस मेनू में कैसे ऐड कर सकते हो वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो मैंने अभी तक यहाँ पे काफी सारे रेफरेंसेस को प्लेस कर दिया, और जैसे ही मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे लिख के आ गया 1 to 10। एक ही साथ मैंने 10 रेफरेंसेस को ऐड कर दिया, और जैसे ही आप बिब्लियोग्राफी में जाओगे जो कि हमने ऑलरेडी प्लेस कर दी है, यहाँ पे आपको सारे रेफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। नॉट ओनली दैट, जो पीछे हमने रेफरेंस नंबर्स ऐड किए थे सी, वो सारे ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। सो इस तरह से आप रेफरेंस को एडिट भी कर सकते हो। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ये गलती से आ गया है, उसको नहीं चाहिए तो उसको निकाल दीजिए आप और सिर्फ सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे 1 to 8 लिख के आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10। सो इन द स्टेप 3 you can use the save changes or insert citation option from this particular menu। इससे और एक स्टेप आगे जाते हैं कि जर्नल की साइटेशन स्टाइल क्या होगी। तो जैसे ही आप किसी जर्नल के होम पेज को क्लिक करोगे, जर्नल्स रेकमेंडेड फॉर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, फॉर पब्लिकेशन इन यूजीसी केयर लिस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक जर्नल आ गई जो स्पॉन्सर्ड वाले। देखिए गूगल सर्च में भी आजकल आपको ध्यान रखना रहेगा कि ये जो स्पॉन्सर्ड वाला रिजल्ट आता है ना, उसको आपको अवॉइड करना है, बिकॉज ये जर्नल्स अपने जो यूआरएल्स है उसको यहाँ पे एक फ्लो दे रहे हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट काइंड वो गूगल को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके अपने रिसर्च सर्च को वो आगे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जर्नल्स को हम अवॉइड करेंगे। यूजीसी केयर में हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जर्नल्स है वो हमको आसानी से मिल जाएगी, या तो कोई भी डिपार्टमेंट उसमें हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। सो यूजीसी केयर में जो भी लिस्टेड जर्नल्स है, या तो फिर अभी हम रैंडमली कोई जर्नल के होम पेज पे जाए, देखिए दीज आर द एडवर्टाइजमेंट्स, राइट। स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स को हम अवॉइड करेंगे। सो जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, सो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जर्नल का होम पेज खुलेगा। अभी जर्नल का जब भी ऐसा होम पेज ओपन होगा उसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी, जैसे कि जर्नल का नेम, उनके पब्लिशर के बारे में बेसिक डिटेल्स, राइट। जैसे सेक जर्नल्स है तो उनका ये पब्लिशर है, राइट। ये जर्नल का होम पेज है। यहाँ पे आपको पेपर सबमिट करना है तो यहाँ पे उसका आपको ऑप्शन दिया गया है। ये फ्री सैंपल भी आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। ये कुछ रिसेंट आर्टिकल्स है, और उन्होंने वेबसाइट के होम पेज को, काफी सारी वेबसाइट ऐसे डिजाइन करती है कि उनके जो आर्टिकल्स है वो थोड़े हाईलाइट हो, तो इससे अलग अलग मेनू में उनका यहाँ पे रिसोर्स मिल जाता है। तो अभी मैं ये आपको जर्नल का वेब पेज क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जिस जर्नल में आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने जा रहे हो उसकी गाइडलाइन आपको होना एकदम मैंडेटरी है। उसकी गाइडलाइन अगर आपके पास नहीं होगी, देन द रिसोर्सेज विच यू हैव यूटिलाइज्ड will be none of any kind of beneficiary for your
publication to the said journal. तो अभी जैसे हम सबमिट पेपर पे क्लिक करेंगे या तो फिर हम उसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे कि जर्नल की इन्फॉर्मेशन, उसके ओवरव्यू एंड मैट्रिक्स, जैसे इम्पैक्ट फैक्टर और फाइबर इम्पैक्ट फैक्टर तो यहाँ पे लिख के आ ही गया है। एडिटोरियल बोर्ड मतलब कि आपके जर्नल की प्रोसेस कैसे होती है। जर्नल सबसे पहले जाती है एडिटोरियल बोर्ड के पास, जो कि आपके जर्नल के कंटेंट को वेरीफाई करता है कि आपने जो कंटेंट लिया है वो हमारी जर्नल का जो एक विजन एंड मिशन है उसके साथ वो कंपेटिबल है कि नहीं। जर्नल का जो ब्रॉड एरिया ऑफ कंसिडरेशन है, अगर वो उसकी गाइडलाइंस में फुलफिल हो जाती है तो ही आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो आगे रिव्यूअर कमेटी को भेजा जाता है। उसी के साथ साथ आपके जर्नल की फॉर्मेटिंग, जो आपके रेफरेंस की स्टाइल है, जो इंफॉर्मेशन जर्नल्स को चाहिए वो सारी उसमें फुलफिल हो रही है कि नहीं, ये सारी चीजें एडिटोरियल बोर्ड जो होता है वो उसको क्लासिफाई करता है, राइट। बट आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज द सबमिशन गाइडलाइंस। तो ये हमारी सबमिशन गाइडलाइंस है कि मैन्युस्क्रिप्ट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, राइट, लेंथ, स्टाइल, ये सारी चीजें उसमें मेंशन की हुई है। और हमारा जो रेफरेंस वाला है वो भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट इन कीवर्ड्स के बारे में भी डन। यहाँ पे जर्नल आर्टिकल्स एंड रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट्स का भी यहाँ पे हमको एक क्लिक दिया गया है। सी रेफरेंसेस, यहाँ पे आप कंट्रोल F करोगे तो दो ही जगह पे है, मतलब कि मोर डिटेल्स विल बी अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर पेज। तो यहाँ पे अभी आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो अभी इंस्टेड ऑफ हैविंग the direct login, we can have the instructions and forms. So instructions for authors is here. सो सी यहाँ पे आपको जर्नल की साइटेशन स्टाइल यहाँ पे आपको देखने को मिल गई। फॉर राइटिंग एंड एडिटोरियल स्टाइल ऑथर मस्ट फॉलो गाइडलाइंस इन द पब्लिकेशन मैन्युअल ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन। सो व्हाट वी विल डू, सपोज मुझे ये जर्नल में मेरा ये मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश करना है तो मैं साइटेशन सेटिंग्स में जाऊंगा, ठीक है। उसमें साइटेशन स्टाइल का ऑप्शन है, चेंज साइटेशन स्टाइल। तो ये देखिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन, ठीक है। तो मैं जैसे ही ये अपडेट साइटेशन स्टाइल्स पे क्लिक करूंगा, सी यहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट हो गए और सारे रेफरेंस भी उसी फॉर्मेट में आ गए। जो अर्लियर फॉर्मेट थी उसमें रेफरेंसेस के नंबरिंग्स आ रहे थे, इसमें नंबरिंग्स नहीं है। सो जैसे हमने आज क्या सीखा कि मेंडेले सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमको साइटेशंस को ऐड करना है। नंबर 2, साइटेशंस को जिस जगह पे भी हमारे मैन्युस्क्रिप्ट के जिस भी कंटेंट में हमें उसको प्लेस करना है, राइट, तो हम वो कंटेंट को, वो कर्सर को हम वहां पे रखेंगे। फिर रेफरेंसेस वाले फॉर्मेट में जाके हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कौन सा रेफरेंस लिया, उस साइंटिस्ट का या उस ऑथर का नाम आपको पता है, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे उसके सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। या तो उसका मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल भी या तो पब्लिकेशन का टाइटल भी अगर आपको पता है तो भी आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में लिखता हूँ तो यहाँ पे जितने भी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के हैं ये सारे डेटा मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। तो अगर आप भूल गए कि आपने कौन सा रेफरेंस यूज किया था तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी काफी बढ़िया है कि मैं यहाँ पे से उसको क्लिक करके सेव चेंजेस में से मैंने उसको भी ऐड कर दिया, राइट। आप चाहे उतनी बार साइटेशन स्टाइल को चेंज कर सकते हो, देयर इज नो सच लिमिटेशन। जैसे कि IEEE में लेता हूँ, सो सी IEEE में इस टाइप का फॉर्मेट है, तो इसी तरीके से, और उसकी बिब्लियोग्राफी की भी फॉर्मेट चेंज हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। उसके कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑप्शंस के बारे में भी अगर हम पढ़े तो यहाँ पे माय प्रोफाइल है। जैसे ही आप माय प्रोफाइल में क्लिक करोगे, ये जो भी आप एरो की देख रहे हो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आपके क्रोम या वो ब्राउजर में। सो सबसे पहला हमने जो आज स्टेप सीखा वो है कि जर्नल की गाइडलाइंस में कौन सी साइटेशन स्टाइल यूज की है, या तो हमको कैसे साइटेशन स्टाइल को हमें डेवलप करना है, वो हम ये जर्नल के होम पेज में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये हमने एक जर्नल के बारे में स्टडी किया, but we can have some another journal also, right? So let's move on to some another journal.
सो दिस इज द जर्नल ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड लीगल रिसर्च। तो जैसे ही मैं जर्नल पे क्लिक करूंगा, काइंड ऑफ दैट जो हमने एक और जर्नल आगे देखी थी उसी के जैसा एक आपको डैशबोर्ड या होम पेज देखने को मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमको सबसे पहले सबमिशन गाइडलाइंस पे क्लिक करना है। तो उसमें हमको बेसिक चीजें क्लियर हो जाएगी कि कौन सी फॉन्ट स्टाइल यूज करनी है, कौन सी साइटेशन स्टाइल। आज का जो मेरा मेन फोकस एरिया है वो है साइटेशन स्टाइल का, कि कौन सी साइटेशन स्टाइल हम उसमें यूटिलाइज करेंगे, राइट। There may be some server issue from the site only. Maybe this site is not working properly. So although we can have some another journal like India Law Journal. So this is again the home page of the journal. This is the ISSN number. सो जैसे कि एक जर्नल है नेशनल लॉ स्कूल जर्नल, राइट। तो ये होम पेज है। इसमें है जैसे ही हम सबमिशन गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमको ध्यान में रखना है मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर करते समय, वो पूरा पेज यहाँ पे विथ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, सी these are the general guidelines. Research articles should be 5,000 to 8,000 words. Overview articles up to 10,000 words. So the detailed guidelines are available in this particular separate PDF file. और जो भी ये जर्नल में कोई आर्टिकल पब्लिश हो चुका है जिसको आपने रिफर किया है, तो उसकी भी साइटेशन स्टाइल अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी साइटेशन स्टाइल ए पर्टिकुलर जर्नल यूटिलाइज कर रही है। सो यहाँ पे आपको एक ऐसा साइन अप का भी ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी जर्नल में जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर रहेगा वो यहाँ पे आपका लॉग इन करके आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो सबमिट करेगा। सो कुछ जर्नल्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं होगा, तो उसमें आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जैसे जर्नल के साइटेशन स्टाइल कौन सी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। ये एम्स एंड स्कोप को भी एक बार आपको पढ़ लेना है कि what are the areas of research they are incorporating or accepting into their journal guidelines. सो होम पेज में जाके उसका कोई आर्टिकल हम देख लेंगे कि कौन सी साइटेशन स्टाइल उन लोगों ने यूटिलाइज की है। सो यहाँ पे हम उसका आर्टिकल ही ओपन कर लेते हैं, बिकॉज उसमें सबमिशन गाइडलाइंस में कौन सी साइटेशन स्टाइल उन्होंने यूज की है वो नहीं बताया गया है। सो ये आपका पूरा आर्टिकल यहाँ पे आपका एक्सेस हो जाएगा।
और यहाँ पे देखिए उन लोगों ने एट द एंड ऑफ फुटनोट यहाँ पे ऐसे आर्टिकल्स को या जो रेफरेंसेस है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करके स्कॉलर में उसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए मिल गया आपको। अभी जैसे हम साइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे जो साइटेशन उसका लिया गया था उसको और ये स्टाइल को हमें कंपेयर करना है कि कौन से पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको लिखा गया है, राइट। और आप मेंडेले में सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे मेंडेले में जाके आपका वर्ड का जो फाइल ओपन है, चेंज साइटेशन स्टाइल, सिलेक्ट अनदर स्टाइल, सी जर्नल ऑफ लॉ, ओके, इसको हम अपडेट कर देंगे तो ये पूरे जो हमारे रेफरेंस स्टाइल है वो भी अपडेट हो जाएगी। सो सी इट हैज बीन अपडेटेड। अगर मान लीजिए कि ये जर्नल जो है वो हमारे साइटेशन स्टाइल में लिस्टेड नहीं है, जैसे मैं चेंज साइटेशन स्टाइल पे क्लिक करूंगा, काफी सारी जर्नल्स को उन लोगों ने कवर कर दिया है, जितनी स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स है, राइट, उसकी सभी साइटेशन स्टाइल्स को इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। लेकिन अगर वो साइटेशन स्टाइल इसमें बाय डिफॉल्ट फिट नहीं है तो हम इसमें कस्टम स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो कस्टम स्टाइल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने साइटेशन लिया था उसको यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, या तो उसका यूआरएल भी हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सी यहाँ पे एरर आई है, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो, उसके यूआरएल को, जो भी आपका रिसर्च आर्टिकल है उसको हम यहाँ पे पेस्ट करके वो अपडेट कर सकते हैं। तो नहीं हो रहा है तो हम उसको क्लोज कर देंगे, राइट। अगेन मेंडेले साइट पे जाएंगे। अगर ऐसा कोई इश्यू आ रहा है आपको तो आप अपने जो वर्ड फाइल है उसको क्लोज करके, फाइल सेव करके उसको रीओपन करोगे तो ये जो इश्यू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। देन फिर मैं रेफरेंस पे मेंडेले साइट पे जाऊंगा। तो एक बार अगर आपने लॉगिन कर दिया है तो जब आप दूसरी बार उसको ओपन करोगे तब वो आपको लॉगिन का जो पॉपअप था वो यहाँ से अभी हट जाएगा, डायरेक्टली आपको अपने सारे रेफरेंसेस यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप वर्ड में जो ये रेफरेंस का मेंडेले साइट वाला जो मेनू है उसको आप यूटिलाइज करते हो, उससे पहले आप जो डेस्कटॉप मेंडेले है, राइट, जो भी आपके डेस्कटॉप पे मेंडेले का सॉफ्टवेयर है उसको आपको यूटिलाइज करना है, राइट। जैसे यहाँ पे मेंडेले सॉफ्टवेयर का लोगो आपको दिख रहा होगा, या तो आप सर्च मेनू में जाके भी मेंडेले सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। तो इसको आपको सबसे पहले ओपन करके रखना है, देन ओनली यू कैन स्विच ओवर टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन, राइट। सो टुडे इन दिस सेशन we have studied about how to incorporate references into MS Word, राइट। MS Word में जाके हमने सबसे पहले मेंडेले साइट को एक्टिव किया, उसके बाद पूरी जो लाइब्रेरी थी साइटेशंस की वो एक साथ एक ग्रुप में भी उसको हमने हमारे मेंडेले सॉफ्टवेयर में उसको इनकॉर्पोरेट किया है। देन व्हाट वी डिड, जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट थी उसमें हम ये रेफरेंस को कैसे ऐड कर सकते हैं, वो कर्सर वहां पे प्लेस करके, राइट। तो वो भी हम यहाँ पे सीखा कि साइटेशन का ये जो चेकबॉक्स है वहां पे टिक करके सेव चेंजेस को जैसे मैं करूंगा वो यहाँ पे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसी के बाद जो भी हमारे कोई दूसरे मैं यहाँ पे साइटेशन प्लेस करता हूँ कोई और जगह पे, ठीक है। तो ये हमने सारे जो मैंने कर्सर यहाँ पे रखी तो वहां पे प्लेस हो गया। सो कंट्रोल जेड आपको करना है और यहाँ पे हम उसको प्लेस करेंगे अगेन, राइट। फिर साइटेशन स्टाइल को कैसे चेंज करना है वो भी हमने सीखा कि जस्ट आपको अपडेट का बटन दबा देना है, सारी चीजें अपडेट हो जाएगी और इंक्लूडिंग बिब्लियोग्राफी।
ये बिब्लियोग्राफी कैसे ऐड करनी है वो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। बिब्लियोग्राफी आपको यहाँ पे रेफरेंस इसमें जाके कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उसमें आपको इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करनी है, तो यहाँ पे आपकी बिब्लियोग्राफी ऐड हो गई। ओके, सो these are the hands-on training for today's session, right? तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स क्या कीजिए कि जो भी अभी लिटरेचर रिव्यू का आपका इनिशियल स्टेज है उसके सारे रेफरेंसेस का एक आप लिस्ट बनाइए, एक एक्सेल शीट में उसको प्लेस कीजिए कि कौन से ऑथर का है, कौन से ईयर का है। कुछ आपको आपके सुपरवाइजर्स ऐसा भी बताएंगे, कुछ रिसेंट आर्टिकल्स आप रिफर कीजिए, कुछ प्रीवियस आर्टिकल्स आप रिफर कीजिए। सो इट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू एंड योर सुपरवाइजर कि कौन कौन से आर्टिकल को हमारे रिसर्च एरिया या तो जो भी आपका रिसर्च गैप है उसको कंसिडर करके आपको रेफरेंसेस को स्टडी करना है। डन। सो with this, here I would like to conclude my today's session. So today this Mendeley software session is being concluded. इसमें अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, लाइक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय, साइटेशन को इंपोर्ट करते समय, मेंडेले साइट के एमएस वर्ड के प्लगइन को एक्टिव करते समय अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, जो आपने रेफरेंस फाइल डाउनलोड की, रेफरेंस फाइल तो डाउनलोड हो जाएगी स्कॉलर में से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप इंपोर्ट लाइब्रेरी करते हो उसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, देन यू कैन प्लेस अ कमेंट इनटू the YouTube video which is uploaded on this platform. So we will definitely revert back to you as soon as possible to clear the doubt with possible resolutions with the comment, with the reply to the comments to be precise, and in the offline lecture which we are going to commence in our upcoming session, right? तो इससे क्या होगा कि एक बार आपका रिसर्च आर्टिकल रेडी हो गया, देन आफ्टर जो भी आप मेंडेले सॉफ्टवेयर को जितना चाहे आप अपने आप भी उसको एक्सप्लोर करोगे तो कुछ और मेनूज आपको मिलेंगे। यहाँ पे सिंकिंग का ऑप्शन है, वो ऑटोमेटिकली सिंकिंग तो होता ही रहता है, लेकिन अगर आप उस बटन पे क्लिक करोगे तो एक और बार वो सारे रिसोर्सेज को फेच कर देगा, राइट? और यहाँ पे भी टिक लिख के आ गया लास्ट सिंक और उसका टाइमिंग भी आ गया 0 minutes अगो। सो this is the Mendeley software which you can utilize for the references and bibliography compilation. तो ये एक फर्स्ट टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसका एक बार हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अपने सिस्टम में भी उसको कर लीजिए कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे सीखे हो उसका अगर आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक वो सॉफ्टवेयर के बारे में भी आप नहीं सीख पाओगे और उसमें आने वाली दिक्कतों के बारे में भी आपको कुछ जानकारी नहीं होगी। अभी तक मैंने ये जो पूरा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको दिखाया वो काफी सारे ट्रायल्स के बाद आपको आपके सामने में ये चीज पेश कर रहा हूँ, राइट? तो आपको भी जो मेंडेले सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम अगर आप उसको रन कर रहे हो, उसके साथ आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर कर रहे हो या तो फिर अभी सीख रहे हो, तो कुछ ना कुछ दिक्कत वहां पे आती रहेगी, लेकिन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करके हम इसका मैक्सिमम एडवांटेज हमारे पीएचडी के टेन्योर को मिनिमल करने के लिए हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऑटोमेशन टूल का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए पोस्ट डेटा एनालिसिस में आज के मेंडेले सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने एक नया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल सीख लिया है। सो आई होप कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे ये मोनार्क यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल यूट्यूब वीडियो चैनल को आप लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी रेगुलर अपडेट्स हमारे पीएचडी कोर्स और प्लेलिस्ट की और भी जो इवेंट्स यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में होती है उससे आप अपडेटेड रहो। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर रिसर्च स्कॉलर्स फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो लेक्चर वेरी केयरफुली, एंड यस ऑब्वियसली आई एम अवेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द reference to or in accordance to today's session like Mendeley software hands-on training, and I wish that all of you will complete this training before my upcoming lecture that is related to the manuscript submission. Okay, so if you have any query you are free to have some comments in the section itself.